بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پیپر کا جو ہے سیکشن بی جو ہے اس سے رہ گیا تھا، تو ہم اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں. اس کو یہ کویشچن 6 ہے کہ اس میں جو دیا گیا سیکشن بی، اس میں سے 2 کرنے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو ڈسکس ان ڈیٹیل دی کانسیکوینسز ہوتے ہیں نتائج آف مینز فرسٹ ڈسوبیڈینس آف گاڈ. اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ جب انسان نے جب پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس کے کیا نتائج نکلے، ان کی تفصیلات جو ہیں وہ ڈسکس کریں، ان پر بات چیت کریں. ود ریفرنس ٹو ملٹنس پیراڈائز لاسٹ، ملٹن کی جو کتاب ہے جو کہ پوئٹک فارم میں ہے، پیراڈائز لاسٹ اس کا نام ہے، اس کے بارے میں لکھیں. یہ پیراڈائز لاسٹ کی بک جو ہے 9 ہے آئی تھنک، جس میں یہ چیز جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے. تو سیٹرنس انٹریگ، ہاں میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا پہلے کہ انسان کی جو ہے ڈس اوبیڈینس والا واقعہ جو ہے وہ بعد میں ہوا تھا. اس سے پہلے جو سیٹن جو تھا اس نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی کی تھی، اور اس سلسلے میں پھر جو ہے اس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا. اور شیطان کو اس بات کا دکھ تھا، غصہ تھا کہ اگر اس کو وہ اگر نہیں رہا ہیمن میں تو وہ جو ہے انسان کو بھی ہیمن میں نہیں رہنے دے گا. یعنی اور انسان کو جو ہے وہ ڈسیو کرتا ہے، پہلے ایو کو جو ہے برگلاتا ہے، اور اس کے ذریعے پھر انسان کو جو ہے انسان اپنی یعنی ایڈم جو ہے وہ اپنی جو اٹیچمنٹ تھی، گریٹ اٹیچمنٹ تھی، اس کی وجہ سے وہ ایو کے ساتھ ہی جو اس کی اچھی بری قسمت ہوتی ہے اس میں اس کا ساتھ دیتا ہے ایڈم جو ہے. اور اس طرح سے وہ اس بات پہ کا رسک لے لیتا ہے کہ وہ خود بھی جو ہے جنت سے نکل جاتا ہے. اور ایو نے تو جو ڈس اوبیڈینس ہوئی تھی وہ تو شیطان نے برگلایا تھا، اور ایڈم نے جو ڈس اوبیڈینس کی تھی وہ ایو کی انتہائی چاہت میں اور اس کے ساتھ گریٹ اٹیچمنٹ کی وجہ سے اس نے ڈس اوبیڈینس کی تھی. وہ اس لیے کہ وہ ایو کو مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا. تو وہ جو ہیں یعنی وہ اس بات کو ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہوا تھا کہ ایو نے اگر ڈس اوبیڈینس کی ہے تو شی شوڈ سفر. تو الون وہ اس نے ایڈم نے اس بات سے ایگری نہیں کیا، اور ہی سپورٹڈ اس کے ساتھ جو ہیں اس نے جو ڈس اوبیڈینس ہوئی وہ پھر جو ہیں اس کا ساتھ دینے کے لیے پھر اس نے بھی وہی جو فاربیڈن فروٹ تھا اس کو کھا لیا. تو اس طرح سے دونوں جو ہیں، کیونکہ یہ ایکسٹریم تھا اس کے لیے کہ ایو کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا اس کو مشکلات میں. تو یہ والا جو واقعہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں ایو والا جو ہے ان کو جو جنت سے ایو اینڈ ایڈم کو نکالا گیا تھا، یہ بعد میں ہوا تھا. اور اس سے پہلے جو پوئم سٹارٹ ہوتی ہے اس میں وہ پوئٹ جو ہے وہ بتاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اس نے جو ہے ایک ہیمنلی موضوع جو ہیں وہ کرنا ہے، ڈسکس وہ بیان کرنا ہے، تو اس کو وہ سپورٹ کرے. اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلتا ہے تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ سٹارٹ کرتا ہے تو اس میں یہ وہ سین اوپننگ ڈرامیٹک ٹائپ آف سین جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیول جو ہیں وہ سارے سیٹن اور اس کے سارے جو فالوورز ہیں they were all lying in hell، سارے دوزخ میں بیٹھے پڑے ہوئے تھے اور ان کی حالت بہت خراب تھی. تو یہ والا واقعہ جو ہے اس چیز کا سیٹن کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایڈم کی وجہ سے جنت سے نکالا تھا، اور سیٹن کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ اللہ کے ان کی ڈائریکٹ جو ہیں اس کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے کیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا، ان سب کو دوزخ میں پھینک دیا گیا. تو نافرمان جو ہیں یعنی جو سرکش ہیں، نافرمانی تو انسان ایڈم جو تھا اس سے تو نافرمانی ہوئی، لیکن سیٹن سے سرکشی ہوئی. اس نے جو ہے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے، مگر سرکشی تو ایک فارم آف وار ہے، اور یہ جو کہ اس نے اللہ کے خلاف جو ہیں وہ سٹارٹ کر رکھی تھی. اور آخر میں ہی از نیور ریپینٹنٹ، وہ کبھی شیطان اس بات پہ ایگری نہیں ہوتا کہ وہ سوری کر لے. ہی از ناٹ کہ کبھی وہ کہتا ہے کہ میں سرنڈر نہیں کروں گا، کبھی تسلیم نہیں کروں گا اپنی شکست کو. اور وہ کہتے ہیں آخر میں وہ یہی ریزولیوٹ یعنی یہ ارادہ کرتا ہے کہ قسم کھا لیتے ہیں کہ وہ
آدم اور ایو سے اس کا بدلہ لے گا، یعنی ان کو بھی جنت سے نکلوا دے گا۔ تو بلکہ نہ صرف نکالے گا، بلکہ ہم جیسے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ مسلسل جو ہے اس آدم کی اولاد جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دوزخ سے نکلواتا رہے گا۔ اب سب کے باوجود ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے جو ہے انسانوں میں سے ہی کچھ جو ہیں وہ ایک بلند مرتبہ پا لیتے ہیں، اللہ کے انتہائی فیوریٹ ہو جاتے ہیں، کسی صورت میں بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے مینس ڈسبین وہ جو ہے اس میں گاڈس وے ٹو مین، ٹھیک ہے کہ اللہ جسٹیفیکیشن وہ کیا تھا، ایک جسٹیفائڈ گاڈس لو جسٹیفائڈ فار مین، ایسا کچھ تھا کہ انسان کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے انسان کے لیے وہ جسٹیفائڈ ہے۔ انسان سے نافرمانی ہوئی اور انسان نے نافرمانی جو ہے مجبوراً کی، ٹھیک ہے، خوشی سے نہیں کی۔ یعنی وہ آدم نے ایو کا ساتھ دینے کے لیے کی تو جانتے ہوئے کہ وہ غلط کر رہا ہے، یعنی اللہ کو نے جو کہا ہے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن اس کے نزدیک یہ بھی تھا کہ ایو کو جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس کی بڑی اٹیچمنٹ تھی، یعنی کسی مجبور کو اس کے حالات پہ چھوڑ دینا اس طرح سے، تو وہ جو ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اللہ نے ایسے نہیں کہا، کہ اس کو شاید ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو ایک طرف ایو تھی جو کہ مجبور تھی اس حالت میں، جیسے کہ اس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ڈس اوبیڈینس ہو گئی، اس کے غلطی ہو گئی، تو اب جو ہیں ایڈم جو ہیں دوبارہ جو ہے ایڈم اور ایو دے ریپینٹ، وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں اینڈ ان کو ہیون میں ایڈمٹ کر لیتے ہیں۔ ڈیول جو ہیں وہ تو کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ہم ایڈم اور ایو کے جو بچے ہیں جو جنت سے باہر ہیں، اب ان کو جو ہیں وہ ان سے وہ انتقام لیتا رہے گا، لیکن شیطان جو ہے کبھی ریپینٹنگ کی طرف نہیں آئے گا۔ اور انسانوں میں سے وہ جو ریپینٹنگ کی طرف نہیں آتے ہیں، جو انگریٹفل ہیں، جو اللہ کو اس کی نعمتوں کے لیے تھینک یو نہیں کہتے ہیں، کیونکہ ہماری دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اس میں کوئی بھی چیز ایک دن کا تک ہم نے نہیں بنایا، اور اتنی جو نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ جو ہے اس کے لیے ہمیں اس کو تھینک یو کہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو وی شوڈ ورشپ ہم، اور وہ ورشپ کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے جیسے کہ ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہم نماز کی صورت میں ہمارے پاس ہے، تو وی شوڈ یہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے تاکہ ہم اس کے شکر گزار رہیں، اور اس کے لیے ہماری اٹیچمنٹ یہاں بڑھے۔ تو وی شوڈ کیپ دیز تھنگس ان آور مائنڈ جب ہم اس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ کانسیکوینسز تو اس کے سمپلی یہ تھی کہ ایڈم اور ایو کو جو ہیں وہ اس سے باہر نکال دیا گیا تھا جنت سے، اور ان ڈیتھ جو ہے ان پر مسلط کر دی گئی تھی۔ دے ول ہیو ٹو لیو اے مارٹل لائف، ان کو جو ہے ایک فانی زندگی میں سے گزرنا پڑنا تھا، یعنی وہ جو ہے وہ اور اس فانی زندگی جو ہے اس میں سفرنگ تھیں اور سفرنگ ہے، اور ان اسپائٹ آف آل دس، ان سب کے باوجود انسان کو جو ہے اپنی جو ہے نافرمانیوں کے لیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور ہاں، یہ جسٹیفیکیشن آپ جو ہے اللہ کی کہ اللہ جو ہے انسانوں کو معاف کر دے اور ان کو جنت میں ایکسیپٹ کر لے، اس یہ جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے انسان نے یا تو مجبوری کی حالت میں کیا ہے، یعنی اس کا جو سوچ تھی وہ پازیٹیو تھی، وہ کسی کی ہیلپ کرنی تھی، کوئی مارل ویلیوز تھیں جن میں کو اپ ہولڈ کرتے ہوئے انسان نے ایسا کیا۔ مقصد بالکل بھی سرکشی نہیں تھا، اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا نہیں تھا۔ تو اگر ایسا تھا، اگر انسان اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کرتا تو پھر اللہ جو ہے اس کو معاف، اللہ کو چاہیے کہ وہ بندوں کو معاف کر دے، اور کیونکہ جو شیطان ہے سیٹن جو ہے وہ کنٹینیوسلی اپنی دشمنی میں وہ انسان سے بدلہ لے رہا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے، ان کو طرح طرح کی جو چیزیں لا کے دیتا ہے، تو اس طرح سے وہ ورگلائے جاتے ہیں، تو ان سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں۔ اور جیسے کہ آج کل ہمیں بہت سے گیجٹس جو ہیں وہ دے رکھے ہیں جو کہ سائنس کے نام سے وہ ہوئے ہیں، سائنس اور
रिलीजन कम ही इनमें कोई यकसानियत पाई जाती है। मुझे हैरत होती है कि लोग जो हैं हमारे कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो समझते हैं कि साइंस जो है वो एक रिलीजन जो है उसी के की एक शक्ल है। ये ऐसा मुझे तो नहीं लगता। मेरी राय मांगे मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल ऐसा नहीं है। साइंस ने हमें स्पीड दी है, ठीक है, जो भी काम हो रहे हैं वो जल्दी जल्दी हो रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं। सो दिस इज द वंडर वंडर ऑफ साइंस। हम जो है कहीं हम अपना पैगाम पहुंचाना होता है तो हम मोबाइल उठाते हैं, जल्दी से सेकंड में पहुंच जाता है। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में हमारी आवाज़ पहुंच जाती है। तो वी हैव डन, लेकिन क्या इसके बावजूद हमें कोई सुकून मिला है, कोई खुशी मिल गई है? दिस इज़ नॉट वो जो अल्लाह ताला ने हमें एक सुकून दिया हुआ है, क्योंकि देयर वाज बैलेंस, एक जो हमने खुद ही डिस्टर्ब कर लिया हुआ है। बहुत सी चीज़ें जो हैं में ऑटोमेटिक सिस्टम जो है इसने हमारी बहुत सी हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है, बल्कि वी आर एडिक्ट टू नाउ। अब हम जो है आदत हो गई हुई है कि हमने कहीं सफ़र करना है तो हमने जो नेचुरल वेज़ हैं वो इस्तेमाल नहीं करने हैं, बल्कि अननेचुरल वेज़ जो हैं उनको हमने फॉलो करना है। लाइक हम कोई व्हीकल निकाल लेते हैं, या फिर जो है मोटर बाइक वगैरह जो हम उस पर सफ़र करते हैं। आई एम सॉरी टू से ये जो है ये नेचुरल नहीं है, और हमें ये मानना चाहिए। और ये बिल्कुल, हाँ, देखिए एक हलाल और हराम जो है हमें उसका फ़र्क रखना चाहिए। तो हमें ये बनी बनाई चीज़ें नहीं मिली, ये हमने खुद बनाई हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने बंदूकें बनाई हैं ताकि हम ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। तो हमारा जो है बेसिक जो है अल्लाह ने हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया था, नाखून वगैरह नहीं दिए थे। हाँ, समझदारी कुछ दी थी। एक समझदारी होती है, एक अक्ल होती है। समझदारी तो ये है कि हम जी हैं ज़रूरी हद तक हम जो अल्लाह ने जो चीज़ें दी हैं हम उनको ज़रूरी हद तक इस्तेमाल करें। बंदूक अगर बना ही ली है तो हमें चाहिए कि हम उसको ज़रूरी हद तक इस्तेमाल करें, उसको बना के रख लें। ये नहीं कि हर वक़्त जो है उस पर जो है वो उसको लेके फिरते रहें। इसी तरह से अगर हमने गाड़ी बना ली है तो हमें चाहिए कि हम ज़रूरी हद तक उसको इस्तेमाल करें, ना कि हर वक़्त ही गाड़ी में बैठे रहें और सड़कों पे दंदनाते फिरें। इसी तरह से अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है या फ़ेसबुक है और दूसरी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, तो ज़रूरी हद तक हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और एडिक्ट नहीं होना चाहिए कि हम जो है हर वक़्त ही उसके साथ अटैचमेंट हो जाएँ, और हम तमाम जो हैं हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम उनको भूल-भाल जाएँ, जैसा कि अक्सर हो जाता है। और अगर ऐसा हो जाए तो वी शुड फील सॉरी, हमें खुदा की तरफ लौटना चाहिए, हमें शैतान खींच कर ले जाता है अपनी तरफ, और हमें जो है कोशिश करनी चाहिए, दिल में ख़्वाहिश रखनी चाहिए कि हम अल्लाह ही की तरफ रहें, और हम जो हैं यानी हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है उसी के बताए हुए जो तरीक़ेकार हैं हम उनके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारें। तो ये जो है हमें जो एक वो मैं बात अक्सर कहा करता हूँ कि क्या कहते हैं उसको, सेहत और सुकून, ये 2 चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से हैं। अगर वो जो हैं वो किसी से ये चीज़ें ले लेते हैं, बहुत कम, हाँ, ये ऐसा होता नहीं है कि जो है ना तो साइंस ना ही माल और दौलत इन चीज़ों को रेस्टोर नहीं कर सकती, बल्कि साइंस और माल और दौलत जो है वो इस चीज़ का ज़रिया है कि हमें हमारे से सुकून और हमारी सेहत दोनों जो हैं वो छिन जाती हैं। बहुत अक्सर ऐसा होता है कि जिनके पास जो है बहुत ज़्यादा जो है आ जाते हैं माल और दौलत, यानी दुनियावी कामयाबी आ जाती है, तो अक्सर उनकी लाइफ जो है इंतहाई ज़्यादा बिज़ी गुजरती है, और सब कुछ होने के बावजूद फिर भी जो है वो कुछ ना कुछ वो ढूँढने में होते हैं, यानी सुकून के लिए वो एक्टिव ही रहते हैं, यानी सुकून जो है वो नहीं करते हैं। तो ये सेहत और इस जो है सुकून की तलाश में नेचुरली फिर उनकी जो सेहत है वो भी अफ़ेक्ट होती है। तो एनीवे ये तो एक आम सा एक जायज़ा है जो मैंने आपके सामने ये बात की है। अब ये बातें दिमाग में रखते हुए हम इस सारी को आगे स्टडी करते हैं। तो ये इसकी डिसोबीडियंस के क्या नतीजे निकले। सैटर्न से इंट्रिग, सैटर्न जो है वर्गलाया, उसने फंसाया इंसान को। द एरर ऑफ ईव, ईव से गलती हुई टू हैव ईटन द फॉरबिडन फ्रूट। सैटर्न ने ईव को जो है साजबाज करके वर्गलाया कि वो उसने गलती करने पर
इंसान ईव की गलती पर उसने जो है ये सारी जो चाल चली कि और उसके बाद जो है कि उसने फल खा लिया जो कि ममनू था। एडम फॉलिंग इनटू द सेम ब्लंडर, एडम भी ऐसी गलती करता है। एंड फाइनल फॉल ऑफ द सिनर्स, और फिर उनको जन्नत से निकाल दिया जाता है ऑन द अर्थ along with the expulsion of the fairy bodies, angels into hell। हाँ ये नहीं है, ये जो है इंसान शैतान ने ऐसा किया और फिर उसके नतीजे में क्या हुआ, into the same blunder and final fall of the sinners, और इनसे हैं उन जो सिनर जो थे उनको निकाल दिया गया ऑन द अर्थ। नहीं ये जो है मुझे नहीं लगता ये ऐसा है, ये जो है एडम ने से गलती करवाई और इसके नतीजे में वो निकला, ये ऐसा नहीं था कि अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से और जो है उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की वजह से, ठीक है, उसके सामने अकड़ जाने की वजह से जो शैतान और उसके जो साथी थे उनको जन्नत से निकाल दिया गया था। क्योंकि जन्नत में तो यही है कि एवरीबॉडी शुड हम अल्लाह ताला की जो वो तारीफ़ करें और सारी मखलूक़ात जो भी हैं वो अल्लाह ताला की जो है तारीफ़ करती हैं। उनका वो तो ये उनका तो प्रोग्राम ही इस तरह से है, वो मानती हैं हर दुनिया जान की जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितनी भी तख्लीक़ात हैं, वो अल्लाह ताला की हम्द व सना करती हैं और वो जानती हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो है उनको ब्लेस किया हुआ है और इसी वजह से वो आराम में हैं, वो सुकून में हैं। और इस शैतान से जो है सुकून छीन लिया गया था, बेकरारी अब इसको पड़ गई, इसकी जो है इसका फ़ख्र और इसका गुरूर जो अल्लाह ताला को वर्शिप करने में था, उसके सामने मुझे अपने आप को छोटा समझने में था, तो वो गुरूर जो है वो जो इसको सुकून जो था जो इसको मिला हुआ था इसके बदले में कि वो ही वाज सबमिटेड टू गॉड, अल्लाह के सामने वो सर तस्लीम खम था। तो अब वो जो है वो सुकून उससे छिन गया है, अब वो बेसुकूनी में है और वो हर तरफ बेसुकूनी जो है वो फैला रहा है। और वो जो है एडम और ईव जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया उन्होंने माफ़ी मांगी, दोबारा जन्नत में आ गए। लेकिन एडम जो सैटर्न जो था वो मुसलसल जो है वो इसमें रहा। और हमने इसमें ये देखते भी हैं, ये जब पोएम शुरू होती है तो इसके शुरू वाले हिस्से में शैतान जो है वो नीचे गिरा पड़ा है। उसके बाद वो प्लान करता है और फिर वो जाके एडम और ईव को डिसीव करता है। तो एडम और डिसीव जो है वो बाद में जो है बरगलाए जाते हैं। शैतान जो है उससे पहले जन्नत से निकाल दिया गया था। तो एडम्स फॉलिंग इनटू सेम ब्लंडर, एडम से भी वही गलती होती एंड फाइनल फॉल ऑफ द सिनर्स, सिनर्स तो वही हैं एडम और ईव हैं, उनको जो है जन्नत से निकाल दिया जाता है ऑन द अर्थ अलॉन्ग विद द एक्सपल्जन ऑफ द फ्री बॉडीज। अब कहते हैं इसके साथ साथ वो जो है शैतानों को भी निकाल दिया गया। शैतानों को तो पहले ही निकाला हुआ था, इनके साथ नहीं निकाला था। एंजल्स इनटू हेल, उनको जो है वो जो है सरकशी की वजह से एडम और ईव को नाफरमानी की वजह से निकाला था और शैतान को सरकशी की वजह से जो है यानी डिलिबरेट जो डिसोबीडियंस है और उस पर जो है स्टबन डिसोबीडियंस है जो है उसकी वजह से उसको वहाँ से जन्नत से निकाल दिया गया था और उसके जो जितने भी पार्टनर थे सबको निकाल दिया गया, जो भी उसके हम ख्याल थे। मेक अप द होल थीम ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, ये सारी जो है पैराडाइज लॉस्ट का ये थीम है। तो इसमें कुछ जो बातें उसने साथ ही लिख दिया, ये है अलॉन्ग विद नहीं है, बल्कि ये है कि इन टर्न पहले जो हैं डेवल से हैं सैटर्न से उनको निकाला गया था, उसके बाद उसकी चालाकी की वजह से शैतान की जो है एक साजिश की वजह से एडम और ईव को भी जन्नत से निकलना पड़ा। The fall and the insinuation are not purely depicted as perpetuating negative values. अब ये the fall and the insinuation और यानी ये उनका जो है जन्नत से निकाला जाना और उनकी शायद मुआफ़ी है या उनको जो है और ये जो उनसे गलती हुई है आर नॉट प्योरली डिपिक्टेड, वाज़ेह तौर पे इनको नहीं जो है डिपिक्ट बयान किया गया एज परपेटिंग नेगेटिव वैल्यूज़ की, ये इनको नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं वाज़ेह तौर पर नहीं दिखाया गया। सैटर्न्स heroism
शैतान की जो है बहादुरी, he is exhorting his cohorts to defy, اور शैतान जो है ये वर्ड जो है अंडरलाइन कर लें, इनके जो मीनिंग ढूंढिए, देखिएगा इसमें क्या लिखे हुए हैं। तो उसके बाद ये शैतान की जो प्लान जो थी एक्चुअली, गॉड मेक हिम लुक लाइक ए ग्रैंड फिगर। अब वो अल्लाह की अथॉरिटी जो हैं जो जिसको वो चैलेंज करता है, यानी उसको ये दिखाया गया है कि वो शिकस्त तस्लीम करने वाला नहीं है, हिम्मत हारने वाला नहीं है। यानी उसकी जो सरकशी है उसको इस तरह से पेश किया गया है कि वो हिम्मत हारने वाला नहीं है, एक तरह से वो एक बहादुर आदमी है। His imperial substance cannot fail him, यानी अल्लाह ताला की जो है सॉरी his imperial substance, अल्लाह ताला की जो है उसका वजूद जो है वो शहाना है, तो वो उसको फेल नहीं कर सकता है। या ये कि शैतान जो है खुद एक बादशाह पसंद जो है एक मखलूक है, तो उसको शिकस्त नहीं हो सकती, यानी बतौर जो है वो गुलाम रह ही नहीं सकता। ही कुड वेज वार बाय फोर्स और गाइल, तो शैतान जो है वो हर तरीके से जंग को जारी रखेगा, हर मुमकिन तरीके से जंग को जारी रखने का उसने अहद कर रखा है। तो इसको जो है हम देखते हैं वाज़ेह तौर पर एक बात है, इसको हीरो बना के पेश किया गया है, लेकिन ये शैतानों का हीरो है, इंसानों का नहीं। सॉरी फॉर स्नीजिंग। ओके, तो जो डेविल है इसको शैतान जो है उसको हीरो जो है उसको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हीरोज की दे दी गई हैं। अब चूंकि वो जो है अभी एक अपनी फोर्स और आर्मी को लीड कर रहा है, तो इस तरह से उसको एक बड़ा फिगर बना के पेश किया गया है। तो हम जो हैं यहाँ पे इस लाइन पे पहुंचे थे कि गायल होता है धोखाधड़ी, धोखे के जरिए से या फोर्स के जरिए से इंसान ने जो है अपना इंतकाम लेना था। लूसीफर ये जो है वुड रादर रेन इन हेल। लूसीफर जो है यानी शैतान है, या वैसे तो इसका असिस्टेंट जो है वो बेल्ज़ेबूब है, शैतान का दूसरा नाम शायद लूसीफर है। ये इस पोएम में तो शायद लूसीफर नहीं इसको लिखा गया, इसको सैटर्न ही लिखा गया है, शायद इसका कोई एक और नाम लूसीफर भी कहीं लिखा गया हो। तो लूसीफर वो ट्राज रेन इन हेल, वो कहता है कि दोजख में हुक्मरानी करना बेहतर है बेशक के जन्नत में अल्लाह की गुलामी की जाए। तो ये जो है ये सरकशी वाले अल्फाज हैं, ठीक है। और इसकी सज़ा दोजख ही है, जन्नत से बाहर निकाल देना। और जो है अल्लाह ताला ने जो जैसे इनको इस हाल में रखा, तो दैट इज ये जो है उनके लिए ठीक था। So his wrath or might could not be extorted from him. तो जो है छीना नहीं जा सकता था, उसका गुस्सा, उसकी जो है ताकत जो है उसको छीना नहीं जा सकता था। His unconquerable will, शैतान की जो इरादा था वो अनकंकरेबल था। His study of revenge एंड हिज इमोरल हेट, और उसकी जो मसलसल हेट जो थी वो अनकंकरेबल थी। एंड ऑल दैट कुड नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हिम, वो उससे छीना नहीं जा सकता था। यानी शैतान का जो है जिद्दीपन, हठधर्मी, और उसका जो अकड़पन जो है ये ख़त्म नहीं किया जा सकता था। इरादा जो उसका जो था यानी सरकशी वो ख़त्म नहीं की जा सकती थी, यानी शैतान ने इरादा कर रखा था कि वो मुसलसल सरकशी रहेगा। तो ये है किसी बंदे के प्यार में होता है कि उसने सरकशी वाली ज़िंदगी गुजारनी है या कि शुक्रगुज़ारी वाली ज़िंदगी गुजारनी है। तो शैतान ने जो है वो चुना ये कि उसने सरकशी वाली ज़िंदगी गुजारनी है। ही इज़ अ स्टडी ऑफ रिवेंज, और यहाँ पे स्टडी तो मताला है, यानी उसका जो है गौर व खोज के उसने बताया कैसे जो है इंतकाम लेना है। एंड ही इज़ इमॉर्टल हेट, और उसकी ना ख़त्म होने वाली नफ़रत कुड नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हिम, उससे नहीं ली जा सकती। ही हैड द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, शैतान ने ये एक जो है ऐसी हिम्मत जो उसकी थी वो ये थी कि वो कभी भी शिकस्त तस्लीम नहीं करेगा। यील्ड शिकस्त तस्लीम करना, सबमिट इसका मतलब ही सर तस्लीम खम करना, यानी अपने आप यानी पछताना, सॉरी कहना वगैरह जी हैं। तो शैतान ने ये रवश अपना ली कि वो कभी भी सॉरी नहीं करेगा, बल्कि जिस हाल में उसको रखा गया है वो उसमें ही
ایسے ہی جو ہے وہ جیے گا، بلکہ اپنی نفرت کے ساتھ اور پکے ارادے کے ساتھ کہ اس نے جو ہے اب جنگ جاری رکھنی ہے، یعنی جنگ سے مراد یہ ہے سرکشی جاری رکھنی ہے۔ آفٹر دی اسٹریٹ فال فرام دی بلسفل سیٹ آف ہیون، یعنی جنت میں ان کا ایک اعلیٰ مقام تھا، اس سے وہ نیچے گرا دیے گئے، اینڈ فالنگ انٹو دی سلفیورس فائر آف ہیل، تو یہ ہیں دوزخ کی آگ جس کو سلفر سے روشن کیا ہوا تھا، جلایا ہوا تھا، جلا دینے والی تھی، اس میں ان کو پھینک دیا گیا تھا۔ سیٹن از the first to gain consciousness، شیطان جو ہے وہ پہلا، سب سے پہلا جو ہے جو ہوش میں آتا ہے۔ ابھی اس کا جو ہے وہ جو آدم کے جو کیا کہتے ہیں اس کو جنت سے نکال دیا گیا، اس کے کانسیکوینس کے ساتھ اس کا کوئی ریلیونس ملتا نہیں ہے، بنتا نہیں ہے، بہرحال یہ پوئم کا حصہ ہے تو اس نے اس کو مینشن کر دیا۔ His act, he acts like classical heroes، وہ جو ہیں جو مشہور ہیرو ہیں ہمارے کہانیوں کے، ڈراموں کے، ان کی طرح وہ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ ہومرز ایلیڈ اینڈ ورجلس اینیڈ، یہ جو ہومر ایک پوئٹ تھا، بلائنڈ پوئٹ تھا، فیمس تھا، شاید گریک تھا وہ، اور ورجل جو ہے یہ بھی ایک کوئی مشہور پوئٹ تھا، اور انہوں کے جو ہے ہومر نے ایک کتاب یا نظم لکھی تھی جس کا نام ایلیڈ تھا، اور ورجل جو تھا اس نے ایک جو بک یا نظم لکھی اس کا نام اینیڈ تھا۔ تو لائک ہیکٹر یہ کوئی کردار ہیں، اور ایچیلیس یہ ہیرو ہیں جو کہ انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے لڑتے ہیں، انسانوں کے ہیرو ہیں، ان میں گریٹ کوالٹیز جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، لیکن یہ جو گریٹ کوالٹیز آف دا ہیومن بینگس ہیں، دے ناؤ ملٹن ہیز گیون دیز کوالٹیز ٹو سیٹن ٹو ڈسکرائب ہز ہیروزم، ہز جو کرج وغیرہ جو ہیں۔ He bears himself up straight، شیطان جو ہے اپنے آپ کو کھڑا کر لیتا ہے، یعنی سیدھا ہو جاتا ہے، and addressed ایڈریسز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اینڈ ایڈریسز his followers، اور اپنے ساتھیوں سے وہ خطاب کرتا ہے، یہاں پہ بیئرز ہیں، یہاں پہ ایڈریسز آنا چاہیے، اور اپنے جو ہے فالوورز ہیں ان کو خطاب کرتا ہے۔ ہی از ناٹ ریپنٹنٹ، وہ نہیں پچھتاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سرکشی ہے۔ ہی ہیز نو سینس آف ڈیفیٹزم، اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ اس کو شکست ہوئی ہے، ٹھیک ہے، شکر بلکہ اس کو تو بہت زیادہ احساس ہے، سب سے زیادہ احساس اس کو ہے شیطان کو کہ اس کو ڈیفیٹ ہو گئی ہے، اور یہ کہ اس نے انتقام لینا ہے۔ He thinks that the grandeur یا grandeur is eternal، وہ خیال کرتا ہے یہ گرینڈر جو ہے یہ تو شان و شوکت ہے، یہ ایٹرنل ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ اب یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو شان و شوکت ہے اس کی طرف ہے، یا پھر یہ کہ اس نے جو اپنے دماغ میں بادشاہت پال رکھی ہے شاید اس کی طرف ہے، اور موسٹ پروبیبلی یہ ایسا ہے کہ جو اس کے دماغ میں بادشاہت جو اس نے سوچ رکھی ہے وہ اسی کی ہے، وہ ایٹرنل ہے، وہ ختم نہ ہونے والی ہے۔ جون ملٹنس فیتھ ان ریلیجن، جون ملٹن کے اپنے بارے میں اس نے یہ بتایا ہے، بتانا شروع کر دیا ہے کہ مذہبی لحاظ سے اس کا جو ایک عقیدہ تھا، یقین تھا، اینڈ سبلمٹی آف مورلزم، اور وہ سبلمٹی اعلیٰ مقام، بلندی، یعنی یعنی بہت اونچا مقام ہونا، ٹھیک ہے، سبلمٹی سے کہتے ہیں، آف مورلزم یعنی اخلاقیات، یعنی اخلاق پرستی جو ہے، has given higher grandeur to the theme of Adam's fall to the earth، اس نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے ایک شان و شوکت والا جو تھیم جو ہے اس کو عطا کیا ہے، اور وہ تھیم کیا ہے کہ ایڈمس کو جنت سے کیسے نکالا گیا، دنیا پہ، زمین پہ کیسے بھیجا گیا، ٹھیک ہے، کس وجہ سے، کون سے سرکمسٹانسز سے، جن کی وجہ سے ایڈم جو ہے وہ زمین پر ان کو آنا پڑا جنت سے۔ which brought death into the world، اور اس کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ہیں وہ ڈیتھ چمٹا دی گئی، اور انہوں نے دنیا میں آنا تھا، زندگی گزارنی تھی، اور پھر انہوں نے ڈسپیئر ہو جانا تھا۔ The immortal taste of fruit caused not only our woes of loss of Eden، تو وہ جو ہیں جو انہوں نے مارٹل ٹیسٹ جو ہیں، یعنی فانی ٹیسٹ جو ہیں، جو انہوں نے جو فروٹ کھایا تھا جس کا ٹیسٹ فانی تھا، مطلب ان کو
वो इटर्नल बीइंग थे जो एडम और ईव जो थे, यानी परमानेंट रहने वाले थे अल्लाह के साथ, ठीक है। लेकिन चूंकि उन्होंने वो एक फ्रूट खा लिया, फॉरबिडन फ्रूट था, और उसकी वजह से उनको फिर उनको जो वजूद जो था वो फानी, यानी यूं समझे कि इंसानी वजूद है उनको दे दिया गया, जिसमें अल्टीमेट डेथ होती है। सपोज टू नॉट ओनली वोज कास्ट, हाँ इसमें हम न सिर्फ हमें दुख और तकलीफें दी है, बट लॉस ऑफ ईडन, बल्कि जन्नत से भी महरूम कर दिया गया। यानी ये जो फॉरबिडन फ्रूट खाने की वजह से न सिर्फ के एडम और ईव को जन्नत से निकाल दिया गया, बल्कि उनको जो है क्या क्या उनको न सिर्फ दुख पहुंचा फानी होने का, तकलीफें न सिर्फ उनको तकलीफें उठाना पड़ी बाद में, बल्कि उनको जन्नत से भी हाथ धोना पड़े। नो डाउट, बेशक, द ग्रेट मैन, अजीम आदमी, मीनिंग जीसस क्राइस्ट, इसका मतलब है कि ईसा अलैहिस्सलाम फिर दुनिया में आए, उन्होंने कुर्बानी दी, और फिर है इंसान का खोया हुआ मकाम उसको बहाल किया। ये इसका कहने का मतलब है। The great man, meaning Jesus Christ, helped mankind to restore the blissful seat by offering his sacrifice to the crucifixion. फिर ऐसा हुआ, ईसाई जो यकीन है, अकीदा है, उसके मुताबिक ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, उन्होंने फिर जो है हक बात की तलकीन की। लोगों को ये बात पसंद ना आई, यानी वो जो जिनके ज़हन हैं वो डेवल माइंडेड थे, शैतानी दिमाग से जिनके, उनको ये बात बिल्कुल, क्योंकि उनके फ़ायदे में ये बात नहीं जाती थी, तो उन्होंने फिर उनको यानी क्रूसीफाई कर दिया गया, यानी उनको जो है क्या कहते हैं, शहीद कर दिया गया एक तरह से, यानी उनको वो जो सलीब है उस पर लटका दिया गया, तो दैट इज वो क्रूसीफाई कहते हैं उसको। ये जो उनका सिंबल है, जो क्रॉस है, उसी से ये वर्ड जो है निकला है शायद, क्रूसिफिकेशन। तो ये जो है यानी सूली चढ़ा दिया गया ईसा अलैहिस्सलाम को, और वो जो है और उनके इस कुर्बानी की वजह से अब इंसान जो है दोबारा जन्नत में जाने के लायक हो गया। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ये है, आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से माफ़ी मांगी और इस्तगफार किया, तौबा की, और दुआ मांगी कि या अल्लाह तू उनको माफ़ कर दें, और वो जो है फिर जो है माफ़ कर दिया गया। मैं जो है शुरू में शायद ही आपको ये गाइड कर रहा था कि मिल्टन ये कहता है कि चूँकि इसमें सारी कहानी के पीछे शैतान का हाथ था, और इसलिए उसको जो है दोबारा एडमिट कर लेना चाहिए तो जन्नत में। तो यानी इंसान को अल्लाह ताला जो है उसको इंसान को अपनी मोहब्बत से, अपनी अनायात से, अपनी शफ़क़त से महरूम नहीं रखना चाहिए, उसको दोबारा जन्नत में जगह दे देनी चाहिए, क्योंकि वो तो बरगलाया गया था। वो या तो बरगलाया गया था, या मजबूरी की हालत में ना चाहते हुए उसने कोई जो है नाफरमानी की थी। तो ये बात भी है, और इनडायरेक्टली ऐसा ही है। अब हम ये देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आते हैं, और वो जो है जस्टिफाई करते हैं कि कुर्बानी देकर तो उनको जो है दोज़ख में जन्नत में इंसानों को दाखिल कर लिया जाए। तो इसमें 2 तरह से हम इसकी इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। एक तो ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के हवाले से, दूसरा ये है कि चूँकि शैतान ने उनको बहकाया था, जो कुछ उन्होंने किया अपनी पसंद से नहीं किया। एक ने तो धोखे में आके, ईव ने तो धोखा खाया, और एडम ने जो है वो मजबूरी की हालत में, क्योंकि उसका पार्टनर जो था ही वाज़ गोइंग टू सफ़र, वो जो है तकलीफ़ों का उसको सामने, यानी डेथ का सामना करना पड़ रहा था, और वो जो है दैट वाज़ वेरी डियर, अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा था जिसकी उसने कदर की, और उसने उसका साथ दिया वगैरह थे। तो ये नहीं है, इसमें सारे काम में उनके जो फ़ाल था फ्रॉम हेवन टू अर्थ, इसके पीछे शैतान की जो है वो एक चाल थी, जिसकी जो जिससे हम कह सकते हैं कि वो इतने कसूरवार नहीं हैं, उनको माफ़ी हो जानी चाहिए। तो ये दैट इज़ जस्टिफिकेशन ऑफ गॉड्स वे टू ह्यूमन बीइंग्स। It provides the reader with a theological lore, how God's Spirit sat brooding। अच्छी चीज़ है, ये प्रोवाइड्स, ये फ्राहम करती है रीडर को विद थियोलॉजिकल लोर। थियोलॉजिकल यानी जो खुदा से रिलेटेड होते हैं, लोर वैसे तो कहानी को कहते हैं।
हाउ यहाँ पे मेरे ख्याल में क्या कहते हैं वजाहत की गई है या उसको दिखाया गया है तहरीर के ज़रिए से। हाउ गॉड्स स्पिरिट सैट ब्रूडिंग, कैसे गॉड जो हैं वो बैठे हुए थे यानी अपने पैरों के नीचे लेके ऑन दी वास्ट अबिस एंड क्रिएटेड द यूनिवर्स, कि कैसे जो हैं उन्होंने ये इस कायनात की तख्लीक की, कैसे ये दुनिया जहान उसने बनाए और फिर उन पर वो इनकी हिफाजत के लिए ऐसे बैठ गया जैसे कोई फाख्ता अंडों पे बैठती है या मुर्गी जो है अंडों पे बैठती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करती हैं, यानी अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें बनाई और फिर इनको अपनी हिफाजत में ले लिया। नॉलेज विच वाज इम्पार्टेड बाय द shepherd prophet, यानी वो इल्म जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, ठीक है? यानी वो चूँकि भेड़-बकरियाँ चराते थे इसलिए उनको शेफ़र्ड प्रॉफेट कहा गया है। टू द चोज़न सीड रिमेन्स, टू द चोज़न सीड रिमेन्स टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एपिक। ये चोज़न सीड पता नहीं क्या चीज़ है। ये चीज़ें जो हैं यानी मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म, टू द चोज़न सीड के कोई होगा, कोई बीज है, ठीक है? उसकी भी कोई कहानी होगी। रिमेन्स टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एपिक, वो इस लंबी पोएम का ज़रूरी हिस्सा है। In fact, it is an expression of John Milton's own extraordinary knowledge। दरअसल ये नज़म जो है मिल्टन के वसी इल्म का जो है एक की एक शक्ल है, which he had so laboriously attained। ये इल्म जो उसने बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद हासिल किया था, all through his life, यानी सारी ज़िंदगी वो किताबें पढ़ता रहा, उसको जो इल्म हासिल हुआ उसका इज़हार इस पोएम नज़म में मिलता है। बिगिनिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, यानी बचपन से लेकर लीडिंग अप टू हिज ब्लाइंडनेस, यानी सारी ज़िंदगी वो किताबें पढ़ता रहा और आखिरकार जो है वो ब्लाइंड हो गया। गाउट एंड डेथ, ये कोई बीमारी है उसको हो गई और फिर वो फौत हो गया। यानी सारा इल्म अपनी सारी ज़िंदगी जो उसने इल्म हासिल किया उसका ये इज़हार हमें इस नज़म में मिलता है। ये कोई बहुत अच्छा आंसर जो है वो नहीं जो है वो बनाया गया। आपने इसमें इल्मियत का इज़हार किया गया है, कुछ लिटरेरी टर्में जो हैं वो यूज़ की गई हैं। बट ये जो आंसर जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग किस्म का नहीं है। एनीवे आप जो हैं अपने तरीके से एक इससे ज़्यादा अच्छा और कन्विंसिंग आंसर जो है वो बना सकती हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये जो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ अ पोएट ऑफ चाइल्डहुड, discuss the with the reference to his ode on intimations of immortality। तो ये जो है चाइल्डहुड को जो है वो प्रेफरेंस देने वाला जो है वो शायर है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो चाइल्डहुड के हक में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। इस वजह से उनको वो एक पोएट ऑफ चाइल्डहुड का एक टाइटल दे दिया गया है। शायद ये पहली दफ़ा ये इस क्वेश्चन में ही दिया गया है, मुझे याद नहीं पड़ता उसको ये कहा गया। लेकिन वो ये बात ठीक है, चाइल्डहुड का वो बहुत ज़्यादा ज़िक्र करता है। तो इस नज़म में वो ख़ास तौर पे चाइल्डहुड को बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत देता है। वो ये कहता है कि बच्चा जो होता है, जो छोटा बच्चा होता है, स्पेशली जो बेबी होता है, वो जो है उसकी अटैचमेंट हेवनली वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि वो उस दुनिया से ताज़ा-ताज़ा आया होता है, तो उस दुनिया की सारी डिटेल्स उसके दिमाग में होती हैं और जैसे-जैसे वो बड़ा हो जाएगा, उसकी फ़ैमिलियरिटी नई दुनिया से ये जो हमारी दुनिया है इससे जैसे-जैसे उसकी फ़ैमिलियरिटी बढ़ती जाएगी, तो हेमनली वर्ल्ड की जो डिटेल्स हैं उसके दिमाग से कम होती जाएँगी। तो वो जो है ज़्यादा जो है आखिरकार होगा कुछ अरसे के बाद वो जो है हेमनली वर्ल्ड को मुकम्मल तौर पे भूल जाएगा। और ये कि हेमनली वर्ल्ड से जो हमारी अटैचमेंट है वो रहती है और नेचर जो है वो हेमनली वर्ल्ड की एक सिंबल है, एक अलामत है। हमें जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं इसी वजह से हमारी फितरत में ये बात पाई जाती है कि हम नेचुरल वर्ल्ड्स की प्रेजेंस को, उनकी खूबसूरती को महसूस करते हैं और खुश होते हैं और ये उससे हमें तस्कीन मिलती है। जैसे एक हमें जैसे ये जो बच्चा है दुनिया में आता है, हेमली वर्ल्ड की डिटेल्स उसके पास होती हैं। तो जब वो बड़ा हो जाता है तो ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को देखते हुए उसको वो पुराना सुकून जो हेमली पीस है
اس کو یاد پڑنا شروع ہو جاتا ہے، یا ہم سب کو، یعنی وہ ہمارے اندر وہ سکون کا احساس جو ہے وہ جاگ پڑتا ہے جب ہم ہیونلی آبجیکٹس کے قریب ہوتے ہیں۔ دنیا کی پریشانیاں ہمارے دماغوں سے دور ہو جاتی ہیں، اور انسان دوبارہ سے وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو حوصلہ اور ہمت ملتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرح کا اس پویم کا جو ہے وہ آئیڈیا ہے، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اٹ از اے فیکٹ، یہ حقیقت ہے، دیٹ امپریشنس آف آور چائلڈہڈ، ہمارے بچپن کے جو امپریشنز ہیں، اظہار ہیں، have a definite influence on our thinking ہمارے and personality، ہماری سوچ اور ہماری شخصیت پر اس کے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ And no less, this had been a William Wordsworth on William Wordsworth، اور ولیم ورڈسورتھ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہیں بلیک اینڈ ورڈسورتھ۔ بلیک ایک شاعر کا نام ہے، ولیم بلیک اور ولیم ورڈسورتھ، یہ دو شاعر ہیں۔ were the two great poets، دو شاعر تھے of child life during the age of romanticism۔ تو یہ سارا جو ٹائم پیریڈ تھا جس میں رومانٹسزم کی بات کی جا رہی تھی، تو اس صبر کے دوران جو ہیں یہ دو پوئٹ جو ہیں ولیم ورڈسورتھ اور ولیم بلیک جو ہیں یہ بہت نمایاں رہے ہیں۔ یہ ایک دور گزرا تھا، رومانٹسزم تھا، جس میں لوگ فیلنگس کا بہت زیادہ جو ہے اپنی شاعری میں بات کرتے تھے۔ And both of them focused their attention not on the seemingly innocent external appearance of the child، نہ صرف انہوں نے بچے کی جو ظاہری شکل و صورت کی طرف توجہ دی، but on some mystical and philosophical strains in his carefree existence۔ بچہ جو ہے چونکہ اپنے فطرت میں لاپرواہ سا ہوتا ہے دنیاوی معاملات کی طرف، ان کی زیادہ وہ کیئر نہیں کرتا، اس کی طرف زیادہ ریسپیکٹ شو نہیں کرتا ہے، تو یہ ایک جو ہے اس بات کی ایک وہ دلیل ہے کہ وہ اپنی دنیا میں وہ مست ہوتا ہے، اس کی نظر میں یہ جو پریزنٹ ورلڈ ہے اس کی جو اتنی زیادہ امپورٹینس نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہیملی پیس جو ہے وہ دیٹس مور امپورٹینٹ، اور اس کی اٹیچمنٹ اسی کے ساتھ رہتی ہے، دیٹ از وائی ہی از فیلنگ ویری پیسفل۔ تو یہ جو دنیا ہے، سوری، بچے کی جو دنیا ہے وہ مسٹیکل ہے، یعنی نہ سمجھ آنے والی ہے، فلاسفیکل ہے، یہ بھی نہ سمجھ آنے، اس کا مطلب نہ سمجھنے والی ہے۔ سٹرینس آپ کہہ سکتے ہیں، سلسلے کہہ سکتے ہیں، ان ہیز کیئر فری ایگزسٹینس، بچے کی جو ہے یعنی کیئر فری لاپرواہی والی جو اس کا جو ہے ایک رویہ ہوتا ہے، اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور وہ جو ہیں اسی دنیا میں رہتے ہوئے ان کا اظہار کرتا ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے وہ اپنی معصوم سی دنیا کو وہ ساتھ لے کے چلتا رہتا ہے۔ تو Wordsworth was himself an extraordinary child endowed with sensibilities۔ Wordsworth خود بھی جو ہے وہ اپنے بچپن پر فریفتہ تھا، یعنی اس میں چائلڈہڈ کی محبت جو ہے وہ سمائی ہوئی تھی، اینڈ فیلنگس، اور اس کے احساسات above the common run of children، عام دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ جو ہیں اس میں بچپنے سے جو اس کی محبت تھی، اٹیچمنٹ تھی، وہ زیادہ تھی۔ The poem ode on the intimation of immortality from recollections of early childhood، یعنی کہ بچپن کی زندگی کی یعنی شروع کے بچپن کی جو اس کی یادیں ہیں جو اس نے کلیکٹ کی ہیں، اور وہ جو ہیں کس چیز کے متعلق ہیں؟ انٹیمیشن، واقفیت، آف امورٹیلٹی، یعنی ابدیت کے ساتھ اس کی واقفیت۔ تو انٹیمیشن آف امورٹیلٹی یعنی دوام کے ساتھ جو اس کی واقفیت ہے، دوام یہ ہے امورٹیلٹی یعنی مسلسل جاری رہنا، تو دوام کے ساتھ اس کی جو واقفیت ہے، اس کی جو ہے بچپن کی جو یادیں ہیں ان کو جو ہے وہ خطاب کرتا ہے۔ دس از اوڈ آن دی انٹیمیشن آف امورٹیلٹی فرام ریکولیکشنز آف ارلی چائلڈہڈ۔ تو یہ جو پویم جو ہے از اے ٹائپیکل ماسٹر پیس آف انگلش ورڈس، انگلش شاعری کا ایک شاہکار ہے، نمونہ ہے، تھرو وچ the poet ولیم ورڈسورتھ has embarked upon a voyage، اس نے ایک اپنا سفر شروع کیا ہے، voyage ہوتا ہے سمندر پہ سفر کرنا،
بحری جہاز وغیرہ میں، تو وہ اپنے سمندری سفر پر روانہ ہوا ہے، یعنی اپنی طویل جدوجہد پر یا سفر پر روانہ ہوا ہے۔ آپ ہائی سیریس تھاٹ، جس میں انتہائی سیریس موضوع ہیں ان کو زیر بحث لایا گیا ہے، یعنی ورڈز وستے ہیں وہ اس نے فلسفک ہونے کی کوشش کی ہے، یعنی قدرت کے جو راز ہیں ان پر سے پردہ اٹھانا اس نے شروع کیا ہے، لوگوں کو بتانا شروع کیا ہے۔ اور قدرت کی جو راز کی باتیں ہیں اول تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی، اگر کسی کو آ جاتی ہیں وہ دنیا کو وہ راز بتانا چاہتے ہیں، لیکن دنیا جو ہے وہ وہ اتنی اہلیت ہی نہیں رکھتی کہ ان کو جو ہے وہ سمجھ سکے۔ تو وہ جو ہیں دنیا جو ہے جو وہ کہنا چاہ رہا ہے دنیا کو، ان کی سمجھ جو ہے دنیا کی سمجھ سے وہ ساری باتیں بالاتر ہیں۔ تو ہی چائلڈہڈ میموریز، اس کی بچپن کی جو یادیں ہیں انڈاؤٹلی، بے شک گیو ہیم ان میچڈ پلیجر، اس کو بہت زیادہ جو انہوں نے خوشی فراہم کی، بٹ دی گروئنگ ایج، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، ہیئر گرینگ، اس کے بال سفید ہوتے گئے، برنگس جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، اٹ برنگس ٹو ہیم سومبر موڈ آف ڈیپ فلوسفیکل ویژنس۔ تو جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا تو وہ اس کا جو مزاج جو ہے وہ فلسفیانہ ہوتا گیا، یعنی فلسفی ویژن، یعنی کہ ویژن ہوتا ہے ویسے منظر ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ چیزیں دکھنے لگیں جو کہ نہ سمجھ آنے والی تھیں، بہت گہرائی والی تھیں، اس کا موڈ جو ہے ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا، سامبر سنجیدہ سا اس کا جو ہے موڈ جو ہے وہ ہو گیا، یعنی وہ سنجیدگی کی طرف آ گیا، اس کے جو ہے فیلنگس میں، اس کے مزاج میں بہت گہرائی آ گئی، اور وہ جو ہے اس کو فلسفیکل ویژن جو ہیں اس کو وہ چیز کرنا شروع کر دیا اس نے، یعنی نہ سمجھ آنے والے جو منظر جو تھے ان کی طرف اس نے توجہ شروع کر دی۔ سچ وشز یعنی شدید خواہش، سچ وشز along with occasional misgivings، یعنی ساتھ ساتھ یہ کہ کبھی کبھار یہ مس گیونگس ہوتی ہیں، ویسے تو یہ غلطیاں ہوتی ہیں، اینڈ ڈاؤٹس اور جو شکوک ہوتے ہیں، آلسو گیو ہم کریج، اس سے ان کو ہمت ملتی ہے ٹو بیئر ود لائف، وہ زندگی میں کے معاملات کو آگے چلائے۔ تو اپنے یہ جو فلسفیانہ مزاج کے ساتھ اس نے یہ جو دنیا کے معاملات جو تھے جس میں اس کو ہمت اور ملتی ہے، یعنی اوکیجنل کبھی کبھار کی مس گیونگس تو غلطیاں ہی کہتے ہیں، اینڈ ڈاؤٹس اور اس کے شکوک ہیں، یعنی غیر یقینی کی جو کفیت ہے، آلسو گیو ہم، یہ بھی اس کو ہمت اور وغیرہ فراہم کرتی ہے ٹو بیئر لائف بیئر لائف کی زندگی جیسی ہے اس کو برداشت کرے۔ سچ سچویشنز، ایسی جو حالات ہیں وی ہیو سین، ہم نے دیکھے ہیں ان دی پوئم، اس نظم میں، جس کا نام ریزولوشن اینڈ انڈیپینڈنس ہے۔ یہ شاید کی ایک اور نظم ہے جس میں ریزولوشن اور انڈیپینڈنس ہے، میرے خیال میں وہ لیچ گیدرر والی جو ہے یہ پوئم ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان وچ پور لیچ گیدرر، ہاں وہی جو بوڑھا آدمی جو تھا، گیو ہم courage to face disease, loss and death as a part of life۔ ایک بوڑھا آدمی جو کہ سمجھتا ہے کہ پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، موت یہ زندگی کے حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں، اور بڑی جمع مردی سے، بڑی دلیری سے وہ ان کا، بہادری سے ان کا سامنا کرتا ہے، اور وہ جو ہے مسلسل اپنے کام میں مشغول ہے، اور اپنی انڈیپینڈنس یعنی کسی پر وہ جو ہے بوجھ نہیں بننا چاہتا ہے۔ تو ان دس اوڈ اس جو ہے خطاب میں وی گیٹ اے ڈبل ڈبل ویژن آف چائلڈہڈ، یہ بچے کا جو ہے ڈبل ویژن جو ہے ہمیں وہ دکھتا ہے، ایک طرف تو وہ دنیاوی چیزیں جو ہیں جن کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے ایک وہ ہیں، اور دوسری طرف جو ہے اس کا دھیان جو ہے وہ ہیمنلی ورلڈ کی طرف ہے۔ تو 6 سال کا جو بچہ ہے وہ دو طرح کی دنیا جو ہے جن میں وہ جی رہا ہے۔ The childhood that we see being busily lived through by children، childhood میں بچے جو ہیں وہ مصروف زندگی گزارتے ہیں، and which we ourselves lived through، بچپن جو ہم نے مصروف گزارا ہے، and the childhood which we carry within us، اور وہ بچپن جس کو ہم اپنے ساتھ اپنی یادوں میں رکھتے ہیں like a memory، اپنی یادوں میں، and which while grounded in our earliest years stays with us، جو کہ
जो कि वाइल ग्राउंडेड होता है, क्रश हो जाना, यानी जिसको पीसा जाना। इन आवर अर्लीस्ट ईयर्स, हम अपने शुरू के सालों में स्टेज विद अस, हमारे साथ जो है वो रहता है। इनटू अडल्ट, हमारी जो है जब हम बड़े हो जाते हैं उस वाली लाइफ में, फॉर गुड, हमेशा की फॉर गुड और इवल, अच्छाई और बुराई की तरफ हमारी रहनुमाई करते हुए। ये बड़ी जो है मीनिंग इसमें क्लियर नहीं है, इंग्लिश तो ठीक है, लेकिन ख्यालात जो हैं उनका उलझाव है, पता नहीं कहाँ से शुरू की कहाँ से बात खत्म कर दी। ये देख सब फुल स्टॉप ही नहीं आ रहा कहीं भी। ठीक है, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये बात को चलाते कहीं और से ख़त्म कहीं और कर गए तो मीनिंग क्लियर नहीं होते, तो ये ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। अगर ये एग्जामिनर जो है इनके मामले में अगर वो कॉन्शियस हो तो शायद वो जो है वो ज़्यादा मार्क्स नहीं देता, वो उसकी यानी वो फील करता है कि शायद दिस इज नॉट गुड, क्योंकि उसके मीनिंग जो है वो क्लियरली नहीं मिलते हैं। तो इस सारी जो पोएम का जो अभी तक पढ़ा है, जो मोटा-मोटा समझ वो ये है कि बचपन की जो है यादें जो है इंसान जो है अपने साथ लेके चलता है, और जो कि उसके लिए खुशी और तस्कीन का बायस होती हैं, उसको जो है रहनुमाई करती हैं। और ज़िंदगी में इंसान जो है जैसे-जैसे बड़ा होता है, वो उसकी अटैचमेंट ये मौजूदा फ़ानी दुनिया के साथ हो जाती है, जिसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, और वो इनको साथ लेके चलता है। और उसकी जो रहनुमाई है वो उसकी रहनुमाई यानी पीस की तरफ जो है, वो उसको बचपन की यादों से मिलती है। एज़ एले किंग पुट्स इट, जैसे कि एले किंग बताता है, देयर टू चाइल्डहुड्स, 2 बचपने में भी कॉल्ड, इनको कहा जा सकता है, फॉर कन्वीनियंस, आसानी के लिए, विजिबल चाइल्डहुड, एक बज़ाहिर जो बच्चे का चाइल्डहुड है वो है, एंड इनविजिबल चाइल्डहुड, और उसका एक ख़याली चाइल्डहुड जो है, यानी जो उसमें जो उसके लिए खुशी का बायस है। यानी बच्चे की दोहरी शख्सियत होती है, यानी उसके हम जो अटैचमेंट है वो दोनों दुनियाओं के साथ होती है। ख़ास तौर पे 6 साल का जो बच्चा था, यानी वो मौजूदा दुनिया में भी रह रहा है, उसके हाथ में खिलौने हैं, उनकी उनका भी उनको उसका भी एहसास है। और एक जो बच्चा बिल्कुल जो दुनिया में आता है, तो वो जो है हर चीज़ को ऐसे देखता है जैसे कोई अजनबी हो, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनको पहचानने लगता है। जैसे उसके अपने जो रिश्तेदार हैं, माँ-बाप, बहन-भाई जो हैं, या अज़ीज़ रिश्तेदार दूसरे जो हैं, बारी-बारी वो जो उसको उसके सामने चेहरे आते हैं, तो हर एक को वो गौर से देखता है, पहचानता वो किसी को भी नहीं है। तो बाद में आहिस्ता-आहिस्ता जो भी ज़्यादा करीब होता है, जो उसको ज़्यादा दिखता है, वो फिर जो है उसके लिए उसकी अटैचमेंट जो है बढ़ जाती है। तो ये एक फ़िल्सफ़ियाना किस्म की जो शायर ने वो बात की है कि बच्चा जो है जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, उस वो दुनिया की में जो उसका वजूद है और दुनिया का वजूद है वो समझने लगता है, और इसके साथ-साथ चूँकि वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, उस पर ज़िम्मेदारियाँ नहीं पड़ी हैं, तो वो अपने आज़ाद मिज़ाज में तो वो जो है अपनी एक खुशी की हालत में रहता है। उसके पास हालाँकि हम देखते हैं उसकी कोई ऐसी उसने सिर्फ़ खाना ही खाया है, और उसको जो है उसकी कोई ज़्यादा मशागल भी नहीं है, और वो जो है वो फिर ऐसी क्या बात है कि जो उसको खुश रखती है, वो ये कहता है कि ये उसकी मेमोरीज़ हैं जो कि हेवनली वर्ल्ड के साथ जो है थी, वो भी क्लियर हैं, उनको देख पाता है, इसलिए वो दोनों दुनियाओं में रहता है, इस दुनिया में भी और जो हेवनली दुनिया है उसमें भी। वी आर मोस्टली अवेयर ऑफ विजिबल चाइल्डहुड, हम जो है बच्चे की जो बाहरी सूरत हाल वाली ज़िंदगी है, उसको ही हम जानते हैं इन इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो बाहरी उनकी जो सूरत हाल होती है, जैसे वो देखते हैं हम सिर्फ उसको पहचानते हैं, उसकी जो ज़हन में जो कुछ होता है हम उससे इतना ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं होती है। इट इज़ अ मदर, ये माँ होती है, हैज़ यीट्स अंडरस्टूड, जैसे कि ये एक शायर था, राइटर था, जैसे कि वो लिखता है, हू नोज़, माँ जानती है, बेस्ट ऑफ इनविजिबल चाइल्डहुड, बच्चे की जो नफ्सियात है, जो उसके मिजाज में होते हैं, जो उसके ख़्यालों में होते हैं, माँ बेहतर समझ सकती है। हू इन हर पैशन, जो अपने प्यार मोहब्बत में, पाइटी तो वैसे बुज़ुर्ग की होती है, नेकपन है, और अफेक्शन या उसकी जो शफ़क़त है, मोहब्बत है, उसमें नोज़ द शेप अपॉन हर लैप, वो जानती है
नोज जानती है द शेप अपॉन हर लैप, यानी अपनी गोद में जो बच्चे को जो है लेके बैठी हुई है वो है। एज ए प्रेजेंस, मौजूदगी का एहसास होता है उसको। दैट सिंपलाइजेस ऑल हेमली ग्लोरी, जिस है बच्चा जो है माँ की गोद में होता है और उसमें सारी दुनिया का सारी जो आप सुकून है उसको माँ की गोद में मिलता है। एंड दैट मैन एंटरप्राइज, और इंसान की ज़िंदगी के मामला जो हैं वो उसको जो है ये भी हैं। वंस अगेन आई शैल से कि ये काफ़ी 4 लाइनों का एक तवील जो है सेंटेंस उसने लिखा है। तो इसमें भी मीनिंग फिर जो है उसने उलझा दी हैं, ख़ास तौर पे यीट्स का हवाला दे के। यीट्स के बारे में जो जानता है वही इसको समझ सकता है, और इसमें पोएम में ऐसा कुछ फ़िलॉसफ़ी जो नहीं दिया गया। ताहम इस तरह का जो रेफ़रेंस है वो एक्सेप्टेबल है। अब यीट्स ने क्या कहा है माँ के बारे में, बच्चे के बारे में, उसकी क्या फ़िलॉसफ़ी है, चूँकि वी आर नॉट वेरी मच फ़ैमिलियर विद दैट, हमें नहीं पता है, हम इसकी बात को क्लियरली नहीं समझ सकते हैं, एक वजह ये है। दूसरा सेंटेंस है उसमें टू मैनी वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलमोस्ट 10 हैं या 40 वर्ड्स इसमें लिखे हैं। तो आई टोल्ड यू दैट इन सेंटेंस की लेंथ इतनी नहीं होनी चाहिए, इससे मीनिंग उलझ जाते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, द पोएट हैज़ डिस्टिंग्विश्ड, शायर ने यहाँ फ़र्क निकाला है। These two childhoods, in though different childhoods में, not only by what he says of each, हर एक के बारे में न सिर्फ जो कि शायद कहता है, but by डिफरेंट लैंग्वेजेस, बल्कि दो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो बच्चा यूज़ करता है वो। यानी बच्चा जो है हेमनली चीज़ों के बारे में जो उसकी एक अपनी लैंग्वेज है, अलाप लाजवाब जब समझते हैं, जो कि दूसरे बच्चे जो हैं जो ग्रोन अप हैं वो लैंग्वेज बोल चुके हुए हैं। लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों की एक कॉमन लैंग्वेज होती है, ये बात किसी हद तक कन्विंसिंग है। और बाद में कुछ लैंग्वेज हैं वो अपने पेरेंट्स से सीख लेते हैं, दुनिया से सीख लेते हैं, अपने जो करीब लोग होते हैं उनसे सीख लेते हैं। तो 2 किस्म की लैंग्वेज है बच्चा वो यूज़ कर रहा होता है, जब वो अपने वो खेल में मसरूफ़ होता है। The visible childhood of the 6 years, darling of a pygmy size, is like openly for us in the factual language दोगे भाई of the 7th stanza। 7वें स्टैंज़े में हमें ये दिखता है कि 6 साल का बच्चा है, बहुत प्यारा सा है, डार्लिंग है, छोटे साइज़ का है, पिग्मी साइज़ का है। तो वो जो है हमारे सामने वो हमें इन फैक्चुअल लैंग्वेज एक फैक्चुअल तो हकीकत पर मबनी जो लैंग्वेज है उसकी बात है, असली वाली लैंग्वेज की बात है, वो हमें वाज़े तौर पर वो दिखता है। ऑन द अदर हैंड फैक्चुअल लैंग्वेज है, मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड लैंग्वेज लैंग्वेज हम सब बोलते हैं, वो एक तो तरफ तो वो है। ऑन द अदर हैंड द विजिबल, सॉरी ये जो है ये भी विजिबल, ये भी विजिबल हाथ हो गई। On the other hand, the visible childhood is referred to as it must be in the terms of metaphor and myth। अब ये जो है बच्चे की जो ये बज़ाहत जो ज़िंदगी है उसकी शक्ल सूरत जो हमें दिखती है, जैसे कि वो है वैसे हमें वो दिख रहा होता है, इसको उसने कहा है इट मस्ट बी टर्म इन टर्म्स ऑफ मेटाफर एंड मिथ। हो सकता है ये बात उसने इशार मिथ होता है, यानी ना अजीब कहानियाँ, ठीक है, अजीब व गरीब कहानियाँ, ये वो अक्सर जो है ये खुदाओं से देवताओं से रिलेटेड होती हैं। और मेटाफर जो है यानी किसी चीज़ को कोई और चीज़ कह देना, कोई और नाम दे के बात करना, तो ये मेटाफर है यानी इस्तारा है। स्पेशली इन द 8th स्टैंज़ा, खास तौर पे 8वें स्टैंज़े में पोएट ने ऐसा ही किया है। यानी बच्चे का जो बचपन है उसको एक खास अंदाज में यानी अलामती तौर पर उसने इसका ज़िक्र किया है। with its names of a child like thou best philosopher, जैसे कि उसने बच्चे को ये कहा है, इस नाम से पुकारा है कि तुम बेहतरीन फिलासफर हो। फिलासफर इस तरह से हो कि तुम जो हेमली वर्ड है उसके राज हैं जो कि हम भूल चुके हैं, वो तुम जानते हो। दाउ दो आई अमंग द ब्लाइंड, यानी तुम जो है हम बहुत से नासमझों में एक समझदार हो।
यानी हम इंसान जब बड़े हो जाते हैं, बहुत सी बातें भूल चुके होते हैं, बहुत सी बातें भूल जाते हैं और जो हेवनली वर्ल्ड जो है उससे मतलब बहुत सी बातें हम नहीं समझ रहे होते हैं। लेकिन ये बच्चा जो है, ये वो बातें जो हम नहीं समझ पा रहे होते हैं, ये उनको जानता है, उनसे इसकी वाक़फ़ियत है, उनसे इनकी इंटिमेशन है, ठीक है? तो ये जो है इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पोएट जो है, ये बच्चा जो है, ये एक बहुत बड़ा फिलॉसफर है। नेचुरली ही कुदरती यानी यकीन नेचुरली यानी फितरी तौर पर या कुदरती तौर पर आप समझ लें, he gave an ideal picture of child's life in the prelude या वर्ड्सवर्थ जो था उसने एक बहुत अच्छी पिक्चर जो है वो पेश की है, यानी सही मायनों में हकीकी तस्वीर जो उसने पेश की है चाइल्डहुड की, चाइल्ड लाइफ की। वो अपनी एक नज़म है जिसका नाम ये रिकलेक्शन वगैरह है, यानी ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी रिकलेक्टेड फ्रॉम चाइल्डहुड। तो ये नज़म जो है, इस नज़म में उसने ये सारी बातें बच्चे की चाइल्ड चाइल्ड लाइफ की एक तस्वीर उसने पेश की है। द स्टडी ऑफ द प्रील्यूड रिवील्स प्रील्यूड की जो मताला करते हैं प्रील्यूड रिवील्स of interests of Wordsworth as a child and shows at the preoccupation of a child in his non-age is to move about seeking for joy wherever he can find it। हाँ, तो ये भाई अब वो देखते हैं द स्टडी ऑफ द प्रील्यूड, ये प्रील्यूड शायद कोई और पोएम है या शायद यही है। द प्रील्यूड एंड द फेमस, ये 2 अलग-अलग पोएम है। उसने बच्चे की बचपन जो चाइल्ड लाइफ है इसकी पिक्चर उसने प्रील्यूड में भी पेश की है और ये इस नज़म जो है द पोएम एंड द फेमस पोएम ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ ये इमॉर्टैलिटी रिकलेक्टेड फ्रॉम चाइल्डहुड, इसमें भी उसने पेश की है। तो वो कहता है यहाँ पे प्रील्यूड की तरफ ये जो लिखने वाला है वो कहता है द स्टडी ऑफ प्रील्यूड की एक पोएम है, इसकी स्टडी से हमें पता चलता है रिवील्स द इंटरेस्ट वर्ड्सवर्थ की जो दिलचस्पी से का पता चलता है एज ए चाइल्ड बतौर बच्चा एंड शोज दैट द प्रीऑक्यूपेशन ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे की जो है प्रीऑक्यूपेशन बच्चे की जो मसरूफियत है उसका जो है किसी काम में मसरूफ होना जो है, किसी काम में लगा हुआ होना है जो है इन हिज नॉन एज इज टू मूव, ये नॉन एज पता नहीं क्या लिखा हुआ है उसने, नॉन तो होता है नहीं, एज का मतलब ज़माना, तो नॉन एज शायद इमॉर्टैलिटी की तरफ उसने लिखा है। इज टू मूव अबाउट सीकिंग फॉर जॉय वेर एवर ही कैन फाइंड इट। हाँ जी, तो बच्चा जो है वो अपनी खुशियाँ जो हैं वो एक जो उसका इमॉर्टल वर्ल्ड है यानी जिसमें से वो आया है, वो दोनों जो हैं उसमें से ये एक ही वक़्त में वो अपने खिलौनों से भी खेल रहा है, इस यानी ये इस दुनिया की जो बातें हैं, उनसे भी लुत्फ़-अंदोज़ उठा उठा रहा है और उसके ख़्यालों में जो आज़ादी है, जो पीस का एहसास है और जो कुछ शायद उसको हेमनली जो वर्ल्ड का जो मंज़र जो है, उसके दिमाग में है, उनको भी वो एन्जॉय कर रहा है। यानी जहाँ जिधर से दिल करता है वो एन्जॉय करता है। उसके सामने दोनों वर्ल्ड हैं, ये वाला प्रेज़ेंट वाला भी और वो इमॉर्टल वर्ल्ड भी दोनों उसके सामने हैं। तो वो ज दोनों से जब दिल करता है वो हेवनली वर्ल्ड से जो है प्लेज़र से उनसे जो है लुत्फ़-अंदोज़ होता है और जब उसका दिल करता है इस दुनिया के जो प्लेज़र्स हैं उनसे लुत्फ़-अंदोज़ रहता है। जैसे कि उसके हाथ में टॉयज़ वग़ैरह हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट शायर के मुताबिक इट इज़ तो इन इस तरह से वो डबल जो है लाइफ है उसकी। अकॉर्डिंग टू द पोएट पोएट के मुताबिक इट इज़ इन द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, ये बचपन में ही ऐसा होता है दैट वी फाइंड अ स्प्लेंडर इन द ग्रास, कि हमने घास को देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ग्लोरी इन द फ्लावर, फूल को देख के बड़े खुश होते हैं। द रिमेम्बरेंसेस ऑफ द डेज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन के दिनों को याद करना कैन प्रोवाइड सोलेस एंड कंसोलेशन, इसे हमें तस्कीन मिलती है। सोलेशन का भी मतलब तस्कीन है, कंसोलेशन का मतलब भी तस्कीन है, सोलेस का मतलब भी तस्कीन है।
कंसोलेशन होता है किसी नुकसान पर जो हमें तसल्ली मिलती है, उसको कंसोलेशन कहते हैं। दैट ए लेटर एज इन ह्यूमन लाइफ, यानी इंसान जब जैसे जैसे बड़ा आगे बढ़ता है तो बाद की ज़िंदगी में उसको बचपन की जो यादें हैं उसको सुकून देती हैं। द मेमोरीज ऑफ चाइल्ड लाइफ, बचपन की जो ज़िंदगी है उसकी यादें और टू बी रिकलेक्टेड, वो ज़हन में रखनी चाहिए। एंड द पोएट गिव्स रीजंस, शायद ये है इसकी वजह ये बताता है फॉर चेरिशिंग दीज रिकलेक्शंस, इन जो है सारी जो बचपन की यादें हैं उनको याद रखने की ये वजह बताता है कि हमारी जो प्रैक्टिकल बात की जो लाइफ है उसमें हमें ये यादें सुकून रिलीफ फ्रॉम करती हैं। अब ये क्वेश्चन 8 है। देयर आर 4 रीजंस, हमने 2 लिखने थे, चलिए ये भी इसको पढ़ देता हूँ, ठीक है। 4 रीजंस, 4 वजूहात हैं इन द माइंड सीजन, सॉरी 4 सीजन हैं इन द माइंड ऑफ मैन, आदमी के दिमाग में, यानी इंसान की जो ज़िंदगी है वो नेचुरल जो 4 सीजन है उसके एन मुताबिक है। एक उसका बचपना है जिसमें स्प्रिंग सीजन से मुताबिक रखा था, यानी हमारी जो अर्ली लाइफ है वो स्प्रिंग सीजन है। फिर वो जो है हमारा अडल्टहुड आ जाता है, वो हमारा जो है समर है, उसमें क्योंकि हमारी बहुत जोश व खरोश होता है, बड़ी गर्मियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे समर गर्म होता है इसी तरह से ह्यूमन बींग्स हैं उसमें भी बहुत जोश जज्बे की गर्मी होती है। उसके बाद फिर जो है उसका ऑटम पीरियड आ जाता है इंसान की लाइफ का, यानी फिर वो जो है उसकी एनर्जी जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है और वो रीजनेबल होना शुरू हो जाता है, जज्बाती नहीं रहता है, अकल से काम लेना शुरू कर देता है। और फिर उसका जो है दिसंबर आ जाता है यानी विंटर आ जाता है, दैट इज द एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो वो कहता है कि इंसान जो है अपनी ज़िंदगी के आखिरी स्टेज में जब दाखिल हो जाता है होता है, तो दैट इज़ द विंटर ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो नॉर्मली हम जो हैं इसमें वो बताता है कहता है कि हमारी ज़िंदगी तो 4 मौसमों की तरह है। तो इमेजरी एंड कंसेंसस explain with reference to John Keats' poem The Human Seasons। ये नज़म कहता है आप अपने ख्यालात का इज़हार करें इस नज़म को ध्यान में रखते हुए। तो इमेजरी एंड सेंसनेस यानी आवाज़ें और तख़य्युल यानी तस्वीर कैन बी सीन एट एक्सट्रीम एंड्स इन द पोएम सोनेट द ह्यूमन सीजन। ये जो एक छोटी पोएम है 14 लाइनों वाली, और इसमें जो है जिसको सोनेट कहते हैं, इसमें शायर ने भरपूर तरीके से बड़ी अच्छी एक क्लियर जो है वो तस्वीर जो है वो हमारे सामने पेश की है। एक नहीं मेरे ख्याल में 3-4 तस्वीरें जो हैं, 4 सीज़न है, 4 तस्वीरें उसने पेश की हैं और बिल्कुल जो है उनकी जो मुताबिकत उसने पैदा की है, बताई है, वो बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है, डिस्टिंक्ट, इसमें कुछ भी जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डाइवर्सिटी एंड द ब्यूटी इज सो चार्मिंग, यानी इसमें रंगारंगी और खूबसूरती जो है। डाइवर्सिटी यानी तरह तरह का चीज़ होना, यानी रंग बिरंगा जिंदगी का होना, जिंदगी के मुख्तलिफ रंग हैं, अच्छे बुरे सारे इसमें आ जाती है, डाइवर्सिटी आ जाती है। एंड ब्यूटी, और इसकी जो खूबसूरती है, इज सो चार्मिंग, बहुत दिलकश है। उसके बाद है द शेप्स एंड इमेजेस सो इनटू आवर विजन। जो हमारी बनावटें, चीज़ों की बनावटें भी हैं और उनकी जो अशकाल हैं यानी सीन है, जो मंजर हैं हमारे ज़हन में जो है वो परवाज़ करते हुए दिखाई देते हैं हमारे ख्यालों में। तो चार्म इज़ सो अपीलिंग, दिलकशी बहुत हैं ऐसी है, यानी मन ऐसी है कि इंसान जिसको तस्लीम करता है। our vision travels through far for early earthly, हमारी जो विजन, हमारा जो ख्याल है, तसव्वुर जो है वो सफ़र करता है थ्रू द earthly as well as for human seasons, यानी इस जो है दुनिया के और जो है जो 4 सीज़न्स हैं उनका उनमें से गुज़रता है, यानी हमारा तख़य्युल जो है हमारी सोच जो है वो 4 सीज़न जो हैं उनका मुशाहदा करती है, यानी इंसान अपनी ज़िंदगी के 4 सीज़नों में से गुज़रता है। सेंसिबिलिटी यानी हिस्स यानी महसूस करने की जो हिस्स है, हमारी जो 5 हवासे खमसा हैं, यानी 5 हमारी जो एबिलिटीज़ हैं चीज़ों को महसूस करने की।
जिनमें यानी चखना, देखना, सुनना वगैरह इस तरह की जो हैं, तो ये हमारी सेंसिबिलिटी है। एंड टेंडरनेस इन सुपर इज सुपर, टेंडरनेस जो है नज़ाकत को कहते हैं। यानी ये जो है ये बहुत सुपर में शानदार है। नज़ाकत इस हवाले से है यानी बहुत ये डेलिकेटली ये चीज़ें जो है डिज़ाइन की गई हैं, यानी हमारी जो हिस्से हैं 5 सेंसेस जो हैं, तो ये इनके टेंडरनेस है और ये बड़ी शानदार हैं, बड़े अच्छे तरीके से बनाई गई हैं। एंड द एल्यूरमेंट होता है वर्गलाया जाना ऑफ पिक्टोरल क्वालिटी, तस्वीरी खासियत से, खूबी की वजह से, इज इनएक्सप्रेसिबल इन वर्ड्स, यानी शायद जिस तरह से मंजर कशी करके हमारे ख्यालात को वर्गला लेता है, यानी अपनी तरफ कर लेता है या अपने साथ ले चलता है, तो ये उसकी जो काबिलियत है वो बहुत ही शानदार है। इट इज़ डिफिकल्ट टू शिफ्ट, ये बहुत मुश्किल है कि हम जो है शिफ्ट कर लें या शिफ्ट हो जाएँ। शिफ्ट आउट व्हिच क्या था भाई? पोएम इज़ सबलाइम, हद हो गया भाई। अब पीछे देखें कि क्या थे वो वर्ड आखिरी जो थे। शिफ्ट आउट है, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, शिफ्ट पढ़ दिया। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू शिफ्ट आउट होता है, जैसे छलनी में से कुछ चीज़ें हैं वो निकल जाती हैं, ठीक है? शिफ्ट आउट कर जाती है। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम शिफ्ट आउट कर दें यानी बच निकलें, बहुत मुश्किल है बच निकलना। व्हिच पोएम इज़ सब्लाइम देन दी, हाँ, शिफ्ट आउट यानी छानने के ज़रिए से, छानना यानी फैसला करना। व्हिच पोएम इज़ सब्लाइम, कौन सी पोएम जो है वो ज़्यादा बेहतर है देन द अदर, किसी दूसरी से, एज़ फार एज़ हिज ऑडियो विजुअल इमेजेस ऑफ स्वीट रेलिशेस आर कंसर्न, शायद जिस तरह से अपने आवाज़ और विजुअल यानी दिखाई देने वाले इमेजेस हैं, जिस तरह से हमारे सामने पेश करता है ऑफ स्वीट रेलिशेस, यानी जो स्वीट होता है यानी खूबसूरत समझ लें, तस्कीन देने वाले, खुशी बख्श जो हैं, जो चीज़ें यानी आवाज़ें जो हमें तस्कीन देती हैं, खुशी देती हैं वगैरह, जिस तरह से उनको जो है अपनी नज़्मों में जिस तरह से वो पेश करता है, उस बुनियाद पर एक नज़म को दूसरी नज़म से उसका फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में अननेसेसरी एक्सप्रेशन यहाँ पे ये दे दिया, इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं थी। चलें, पावरफुल इक्विस एक्विजिटनेस एक्सक्यूज़िटनेस सॉरी एक्सक्यूज़िटनेस ऑफ थॉट, एक्सक्यूज़िट होता है बहुत ही ज़्यादा शानदार होना और बहुत ताकतवर, शानदार, उसका जो ख़्यालात की जो खूबी है इज़ स्प्रिंकल्ड इन ऑल हिज़ पोएम्स, यानी उसकी सारी नज़मों में ख़्यालात की शानदार होने का छिड़काव हमें मिलता है। स्प्रिंकल छिड़कना, छिड़काव करना। एंड सो इज़ इन द पोएम, और इस नज़म में भी ऐसा ही है, जिसका नाम है द ह्यूमन सीज़न। यूनिक इमेजेस कम टू सरफेस, यानी बेमिसल या बेमिसाल जो इमेज हैं वो हमारे सामने आते हैं, सरफेस सतह पर आ जाते हैं, एज इफ फ्रॉम अंडर अ सर्जिंग सी ऑफ पावरफुल इमेजिनेशन, ऐसे के यादों के, ख्यालों के समुंदर की गहराइयों में से कोई चीज़ जो है वो ऊपर पानी की सतह पे आ जाती है। इस तरह से बड़ी गहराई से ये जो खूबसूरत जो इमेजेस जो हैं उसकी नज़्मों में जो हमें दिखते हैं, वो ऐसे ही इसी अंदाज़ से सतह पर आ जाते हैं। यानी हमारे ख़्यालों के समुंदर से खूब पोएट के ख़्यालों के समुंदर से खूबसूरत इमेजेस जो हैं वो सतह पर आ जाते हैं, हमारे सामने वो मंज़र जो हैं वो नमूदार होते हैं, वो इमेजेस और वो खूबसूरत मनाज़र हमारे सामने आते हैं और हम उनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बिसाइड्स हिज ओड्स, अपने जो है खताबात के अलावा, द पिक्टोरल क्वालिटी ऑफ जॉन कीट्स, यानी तस्वीर कशी का जो आर्ट है जॉन कीट्स में, इज मैनिफेस्टेड, वो दिखाई देता है इन द ह्यूमन सीजन, ये जो है द ह्यूमन सीजन में ये दिखाई देता है। पेंटेड
come and go before us. ये सारे मनाजर रंगीन शक्ल में यानी हमारे सामने आते जाते हैं, पेंट किए हुए। The warmth of the sun, सूरज की जो गर्मी है, the smell of flowers, फूलों की खुशबू, sonorous sounds, खनखनाती आवाजें of nature, फितरत की, can be heard and felt. वो इस नज़म को पढ़ने से वो हमें सारी सुनाई देती हैं और उन ये सारे जो खूबसूरत मनाज़र हैं, खुशबुएँ हमें महसूस होती हैं। Four seasons of man's life on the earth are linked with our diurnal dia- diurnal seasons। ये पता नहीं क्या भाई diurnal season। फोर जो हैं, फोर सीजन सीधी सीधी बात करें, diurnal पता नहीं क्या। चार सीजन जो हैं जो इंसान की जो अर्थली लाइफ के जो हैं आर लिंक्ड विद डायरनल सीजन्स ऑफ ए मैंस लाइफ, यानी इंसान की जो यानी जो कुदरत के जो चार सीजन हैं उनको इंसान के चार सीजनों के साथ जो हैं उन मुताबिकत पैदा की गई है, उसको उसके मुताबिक कहा गया है। चाइल्डहुड यूथ, चाइल्डहुड यानी बचपना, यूथ जवानी, मिडल एज वो क्या कहते हैं दरमियानी उम्र, एंड ओल्ड एज और बुढ़ापा आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फोर सीजन्स ऑफ द अर्थ। वो दुनिया के जो चार सीजन्स हैं उनसे मुतासर शुदा है, यानी उनसे मुतासर होते हैं, मतलब उनके चार सीजन के असरात इंसानी ज़िंदगी पर पाए जाते हैं। In the poem इस नज़्म में जॉन कीट कहते हैं that our seasons fill the measures of the year। हमारे जो seasons हैं वो हमारे फोर सीजन जो है वो हमारी जो हैं मेयर्स, वो हमारी ज़िंदगी के माहो साल हैं, ठीक है। ये फोर सीजन जो है वो हमारी ज़िंदगी के का की पैमाइश हैं। तो ये जो हमारे ज़िंदगी के माहो साल हैं, टाइम मेजरमेंट है। दीज फोर सीजन्स फिल द माइंड ऑफ मैन, इंसान के दिमाग में ये को भर देते हैं। ड्यूरिंग द लस्टी स्प्रिंग, लस्टी स्प्रिंग ये भी कोई पोइम होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द लस्टी स्प्रिंग, लस्टी ये स्प्रिंग की तारीफ करते हुए कहता है, नहीं ये कोई अल्फाज है। लस्टी स्प्रिंग यानी स्प्रिंग सीजन की वो तारीफ करते हुए कहता है, क्लियर फैंसी वेलकम्स ऑल अ ब्यूटी अवे द फुल इज। यानी फैंसी जो है यानी तमाम तखयल को साफ सुथरे तक यानी तखयल जो है बहुत एक्यूट होता है। वेलकम्स टू ऑल ब्यूटी विद द फुल ईज। तो इसमें जो है क्लियर फैंसी जो है ये तो ये हमें वो दिखाई यानी सॉरी ये जो स्प्रिंग सीजन है ये क्लियर फैंसी है, यानी बिल्कुल जो है हमारी अर्ली लाइफ की तरह है, बिल्कुल ठीक ठीक अर्ली लाइफ की तरह है। और ये स्प्रिंग सीजन जो है वेलकम्स ऑल ब्यूटी विद फुल एज, हर किस्म की ब्यूटी जो है वो हमारे सामने पेश कर देता है फुल एज यानी बड़ी आसानी के साथ। यानी विन स्प्रिंग सीजन के लिए कोई मुश्किल नहीं होता ब्यूटी को पेश करना, तो उसके लिए ये आसान है। ड्यूरिंग द लग्जरियस समर, तो पुरसकून जो है लग्जरियस यानी पूरा साइश समर जो है यानी समर सीजन है। ही लव्स टू रूमिनेट अबाउट लव, तो शायद जो है मोहब्बत की तलाश में होता है। एंड इट्स थॉट, और इसके ख्यालों में खोया रहता है। रूमिनेट खोया हुआ होना, बढ़ते रहना, फिरते रहना, ठीक है, अपने ख्यालों की दुनिया में मोहब्बत और मोहब्बत के ख्यालों में वो खोया रहता है। ही इज लॉस्ट इन हिज ड्रीम्स, वो अपने ख्यालों की दुनिया में खोया रहता है। हिज ड्रीम्स टेक हिम, his dream takes his imagination to heaven। उसकी जो ख्वाहिशत हैं, उसकी जो ड्रीम्स हैं वो उसको हेवन की तरफ ले जाती हैं, यानी वो एक जन्नत में ही रह रहा होता है। he feels the wings of his imagination, वो अपनी ख्यालों के परों को महसूस करता है। आर स्प्रेडिंग अराउंड हिम, उसके इर्द गिर्द यानी जैसे परिंदा पर फैलाए हुए होता है, इस तरह से फैले हुए उसकी इमेजिनेशन के विंग उसको फैले हुए महसूस होते हैं। ही लुक्स फॉर ग्रोव्स पैस्चर्स, ये जो हैं ज़मीन की मुख्तलिफ हालतें हैं। ग्रोव्स जहाँ पे दरख्त होते हैं शायद वो हैं। पैस्चर्स जहाँ पे घास होती है, एंड वैली और जहाँ पे वादियाँ होती हैं उस पर वो
उड़ रहा होता है, यानी अपनी ख्यालों की दुनिया में वो खूबसूरत मनाज़र पाते हैं, जैसे परिंदे प्रवास कर रहे होते हैं, इस तरह से वो उसकी इमेजिनेशन प्रवास कर रही होती है। व्हेन विंटर कम्स, जब विंटर आता है, आखिरी सीज़न आता है, इट इज़ सीन, ये ऐसा दिखाई देता है एज़ पेल मिस फीचर्स, जैसे पेल कलर के रंग खराब हो गए हों, फीचर्स इंसान की जो है बनावट खराब हो गई हो, और एल्स ही वुड फोरगो हिज मॉर्टल नेचर, और इंसान जो है वहाँ हार जाता है अपनी फ़ानी फितरत के आगे, यानी वो जो है फाइनली अपनी डेथ को कबूल कर लेता है और इस दुनिया से जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये जो नज़्म जो पोएम हमने पढ़ी है इसके बारे में शायर ने जो है वो ख़यालात का इज़हार किया है। अब मैंने ये देखा है कि लोग अपने-अपने अंदाज़ में इसको लिखने की कोशिश करते हैं। हमने बहुत लेंथी सेंटेंस को अवॉइड कीजिएगा, इसमें जो एग्ज़ामिनर जो है उसको समझने में दुश्वारी होती है, और अपनी लैंग्वेज को प्लेन रखें। कुछ-कुछ कहीं-कहीं जो टर्में इस्तेमाल हुई हैं आप उनको करें, जो कि क्लियर है उनके दिमाग में। जो नई जो वर्ड ऐसे हैं उनको अंडरलाइन करें, उनको मीनिंग तलाश करें कि क्या मीन, जैसे मेटाफर है, सिमिली है, इस तरह के कुछ अल्फाज जो हैं वो आते हैं, तो आप उनको जो है देखिए। तो बाकी ये नहीं है बेसिक नहीं है, वो हमने ख़यालात पोएट के जो ख़यालात हैं उनका तनकीदी जायज़ा लेना होता है, वो ठीक है, नहीं है, कैसे हैं, किस तरह से वो ख़यालात पेश किए गए हैं, क्या टेक्निक लगाई गए हैं। तो ये एक तनकीदी जायज़ा होता है जिसको हमने, और इसमें महारत जो है वो उसका इज़हार हमने अपने ये क्वेश्चन पेपर में करना होता है। नाउ विषय में ये पेपर तो ख़त्म हो गया, इसके बाद वाला पेपर मैं थोड़ी देर बाद बनाऊँगा, ठीक है? तो इट विल टेक मी टाइम। तो कल मैं कोशिश करूँगा कि क्लास आपकी, अभी तक मुझे फ़ोन तो नहीं आया है कि कब जो है 12 बजे मैं फ्री हूँ कि नहीं हूँ। हाँ, अभी तक तो मैसेज नहीं आया, कोई पता नहीं कब बात का 10, 11, 12 बजे तक आ ही जाता है। अगर आ गया तो मैं आपको फिर ईमेल के ज़रिए इंटीमेशन दे दूँगा, क्योंकि 12 बजे कॉल करना मुझे मुनासिब नहीं लगता है। तो ईमेल के ज़रिए मैं फिर आपको बता दूँगा कि मेरा टाइम शेड्यूल फर्दर टुमारो क्या होगा, या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग। नहीं, रात को ही बता दूँगा, आपने 12 बजे कहा तो मैं आई विल टेल यू। ओके नाउ आप इसको मुताला करें, और कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई दुश्वारी हो तो यू कैन मेरे से बात कर सकती हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। Thank you for reading this or for and listening to this lecture. Take care. Allah Hafiz.